Thank you very much, Viral, and the Indian Institute of Teacher Education, as well as the Gujarat University. I consider it my privilege to have been invited. So, my sincerest thanks and gratitude. It's always a pleasure to talk on teacher education because teacher education is, I believe, the backbone of education system. We just have the National Education Policy 2020, not even 1 month back. We are all discussing it. 29th July, it was passed by the cabinet and released for the nation. We have all read it. And so let me start with a brief about what is the structure of the National Education Policy. If you look at the National Education Policy, it is the briefest of the policies that we ever had. हम हिंदी में भी बोलेंगे, अंग्रेजी में भी बोलेंगे. हमको लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं सभी अंग्रेजी हिंदी दोनों समझेंगे. क्यों विरल? ठीक है जी. Participants are comfortable with both the language. Okay, fine, line. And so if you look at the policies that we had ever since 1882, we had the Woods Dispatch, and since then continuously there have been commissions, committees on education which have responded on education and suggested. You will see 300, 400 pages reports and documents. This is the briefest of the policies that we ever had. It is just 62 pages. And 3 pages of abbreviations and all that, 2 pages of covers and introduction, 3 pages, 25 pages on school education. Chapter 5 and 15 are devoted to teacher education, which is very, very important. Why are we talking about teacher education? Teacher education is the backbone of the complete education system. Look at the practice we had in India, and if you closely try to understand what made India a great nation and a nation which has about 37% of world trade, contribution of 37% in the world trade, how did it happen? And now that we have less than 10% of the world trade, why has it happened? Why are we not able to come up? You will find that our education system was a very, very vibrant system, which was largely dependent on the teacher. The whole teaching learning process revolved around the teacher and the society. You will know, and I'm sure I'm repeating, that education is the largest sector where maximum transaction takes place in terms of finance, money, economy. And for a sector as large as education, the government takes over because they believe we will collect tax and we will salary people, we will pay them. It becomes a huge or humongous task for the government. Look at the education system, teachers' performance or teachers' recruitment and the processes before Macaulay and after Macaulay. We have been talking about the Macaulay's minutes. You will see that Macaulay's minutes clearly says one thing: society will not manage its education itself. On the contrary, the government will manage. We must try to understand this. Why did Macaulay say that instead of the society, the government will manage, we will give grants, and we will manage education? If you look at education before that, you had the maktabs, the madrasas, the ashrams,
the Ved Pathshalas. So the education was society dependent, dependent upon the society. The society itself managed its institutions and took care of the Guruji, the Maulvi, or whoever, and it was running smoothly. And when we had a system like this, we were the leading nation. We had 37% of world trade from India. India was a leading country. Today, America is a leading country with more than 35% of the world trade being done from US. Why am I referring so much to Macaulay is that Macaulay deliberately shook the Indian system of education, broke the backbone of Indian education by taking over education. Today, the UNESCO report says the 6 best performing nations in education are those where education is not managed by government but by the stakeholders themselves, independent agencies, the autonomous bodies. So, we need to understand that government should withdraw from education and let it be in the hands of the teachers, those who are stakeholders, and they must manage through autonomous system of its governance. Now, if you look at the Subramanian Committee report, the draft National Education Policy, if you look at the Kasturirangan draft Education Policy report, both the policies have said that we have a very corrupt system of teacher education. Kasturirangan, the draft National Education Policy of Kasturirangan says in no unclear terms that National Council of Teacher Education is the most corrupt body and it has failed to deliver. We have about 18,000 teacher training colleges in India. 92% of the teacher training colleges are in private hands, managed by private parties. 6% of the teacher training colleges are aided. That means they are run by private agencies, but the government gives aids to them. And only 2% of the teacher education colleges are managed by government. I'm sure you will see the contradiction in my speech that on the one hand, I'm saying that Macaulay took over education in the hands of the government, which was not good, and that damaged our education system. Our education system have been society supported, managed by the stakeholders, and on the contrary, I'm saying that today the NCT and the education, the departments of the colleges are 92% in private, 6% aided, 98% in private hand. So it has failed to deliver because the National Council of Teacher Education, which had the responsibility of managing this institution, did not do a good job. It was a government agency created in 1993. It was established. The National Council for Teacher Education Act was passed by the Parliament in 1993 and it was established in 1995. In less than 25 years, this body has emerged as a non-functional. I will not again and again use the word corrupt. Although the government report says it is corrupt, I will only say it failed to perform. For those who are involved in teacher education, there has been a National Council for Teacher Education as a non-statutory and as a statutory body. In 1993, the NCT only became a statutory body. Before that, there was NCTE, National Council for Teacher Education, within the NCERT. So that body was managing teacher education.
But in 1993, it became a statutory body. I hope you understand the meaning of statutory body, that when a body is created through an act of parliament, it gets the powers to regulate, and it has the power to regulate across the country. So the University Grants Commission is a statutory body created by an act of parliament. So whatever the rules, the regulations, the NCT, the UGC decides for the higher education, or the NCT decides for teacher education, is applicable across country. In 1995, when the NCT started functioning as a statutory body and it made rules and regulations for teacher education, since 1995 to 2020, those of us who have seen the pre-95 era and post-95 era will agree that there has been no improvement in the quality of teachers. Why? It has been said many times that the NCT very frequently changes norms and regulations. Why did that happen? The NCT also intervened or interfered or got into the process of designing and developing curriculum. It had no expertise, academic expertise, to design and develop teacher education courses. So the impact was that we had teacher education in a bad shape. In 2015, the government set up a National Council for Teacher Education Review Committee. Professor Mohammad Akhtar Siddiqui was the chairman of that committee. I had the good fortune to be a member of that committee, and we visited colleges across the country. In fact, we also met the college, the B.Ed college principals, teachers, students in Ahmedabad, Gandhinagar. We were under tremendous pressure to withdraw the 2-year B.Ed program and go back to 1-year B.Ed program. You are all teacher educators. You must think over it. I will be raising issues, may not have answers. You must find answers through your research as why these things have happened in teacher education. The pressure on the committee was that because of the 2-year B.Ed program, a large number of students who were coming to take a B.Ed degree had stopped because the fees for 2 years was too much. And if it was 1 year, then perhaps they can come and give that fees for 1 year and acquire that degree. You are all teacher educators. What is the concern? What should be the concern? The fee should be the concern of the nation, or preparation of good teachers should be the concern of the nation? We all keep talking about Finland. Today, the Prime Minister has addressed the nation, and he himself mentioned a number of countries, including Iceland, Finland, and these countries, that they are very well performing and the teacher is very vibrant there. I hope, I urge the Prime Minister to take note that in Finland, government has no interference in schooling, in teacher preparation. I must quickly add, I am a great supporter of the Modi government and Narendra Modi. But as Prime Minister himself says, that my concern, my primary concern is my nation. My concern as a teacher is first my teachers, my students, and my nation. So even if I have to say things which are not very pleasing to the government, I will have to say, and you must say as teachers.
तो मेरी जो बातें हैं वो एक क्रिटिक के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर हमको देश को ठीक करना है तो टीचर एजुकेशन क्या होना चाहिए, और वही मेरा आज आपके साथ चर्चा का विषय है। मैं आपसे आज जो चर्चा कर रहा हूं, चूंकि आप सब शिक्षक प्रशिक्षक हैं, तो मैं आने वाले समय में आप कैसा शोध करेंगे, आप किन विषयों पर शोध करेंगे, किनको खोजेंगे, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं कि आप निश्चित तौर पर ये चर्चा करिए, अपने शोध में देखिए कि 1993 के पहले टीचर एजुकेशन की क्या दशा थी। आप आसानी से निकाल सकते हैं कि बच्चे कितना लर्न किए, कितना परफॉर्म किए, और 1995 के बाद जब एनसीटीई बना तो कैसा परफॉर्म किए। आराम से आप देख सकते हैं। इसके साथ निश्चित तौर पर एक बात और जुड़ी होगी कि ये 2009 में, आई थिंक यस 9 में हम लोगों ने निर्णय लिया था नो डिटेंशन का, कि एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में बच्चों को डिटेन नहीं किया जाएगा, वो ऑटो प्रमोशन में ऊपर जाएंगे और वो 9वीं क्लास में आकर के पहली बार परीक्षा देंगे। तो कक्षा 1 से 8 तक के टीचर्स की ट्रेनिंग की कोई जरूरत थी क्या? और जो टीचर ट्रेनिंग भी हुआ था वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सरकार ऐसे निर्णय ली थी कि हम नो डिटेंशन करेंगे, हम उनकी परीक्षा नहीं लेंगे। तो जब पेरेंट्स भी आते थे, बच्चे भी आते थे, कहते थे कि आप मुझे रोक तो सकते नहीं है, तो क्या करना, तो टीचिंग चला गया, असेसमेंट चला गया, और दोनों चीजें जो क्रूशियल हैं वो दोनों बाहर चली गई। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई ही नहीं हुआ। केब ने फिर दोबारा एक कमेटी बनाई, जरूर पढ़िए आप, केब के नो डिटेंशन पर एक कमेटी बनी। और मेरा राजनीतिक प्रश्न उठाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये निर्णय यूपीए का निर्णय था 2009 का, और मुझे लगता है कि 11-12 में ये समिति स्थापित की गई थी जिसके की अध्यक्ष बिहार के शिक्षा मंत्री शाही जी थे, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के थे। और उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं कि मैं दोनों केब में बैठा था। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये टीचर एजुकेशन के विषय पर आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने टीचर को सेंटर स्टेज नहीं किया, शिक्षा के सारे निर्णय केब लेती है, मंत्री लेते हैं, सरकार लेते हैं, सेक्रेटरी लेते हैं, लेकिन टीचर नहीं लेता है, तो क्या होगा? Teacher education is important for 2 reasons. In the background of what I have said and analyzed now, make the classroom teacher autonomous. आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बातें बताई शिक्षकों को क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मैंने कहा था कि बच्चों को बाहर ले जाओ, उनको गांव से परिचय कराओ। मेरे बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन गांव से परिचित नहीं होते हैं, समाज से परिचित नहीं होते हैं, तो गांव के बच्चों को गांव में ले जाओ, घुमाओ, पूछो कि सबसे पुराना वृक्ष कौन है। बहुत बढ़िया उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिया। और टीचर ले गया, सब बच्चे घूमे, एक दूसरे से बात किए, बड़े बूढ़ों से पूछा कि कौन सा पेड़ कब लगा था, क्या हुआ था। तो एक उद्देश्य है कि हम समाज से जुड़े। हमारी एक चिंता है कि हम जो पढ़ लिख जाते हैं वो समाज से कट जाते हैं। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और हम शिक्षक समझते हैं, लेकिन हमारा करिकुलम कोई और बनाता है। हमको क्या पढ़ाना है ये हमको छोड़ के पूरे देश को पता है। मैं टीचर एजुकेटर हूं, मुझे अपने टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है ये मुझको छोड़ के सबको पता है दुनिया में। आप जो क्लास में पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाएं ये आपको छोड़ के पूरे दुनिया को पता है। आपको केवल पता नहीं है, पूरी दुनिया बताती है सर आप अगर ऐसे पढ़ाए तो बड़ा अच्छा है। तो ये टीचर्स को कहा गया कि आप ले जाइए बच्चों को गांव में, उनको गांव से परिचय कराइए, और वो बच्चे फिर खोज के लाए कि ये पेड़ सबसे पुराना पेड़ है जो इस गांव में है।
इसी तरह उन्होंने कहा कि आप इनको रेलवे स्टेशन ले जाइए, इनको बस स्टैंड ले जाइए। अगर आप ट्रेन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में कैसे बताएंगे? उनको एक दिन रेलवे स्टेशन ले जाइए और दिखाइए। क्या हम फील्ड विजिट नहीं पढ़ाते हैं टीचर एजुकेशन में? हम सब पढ़ते हैं। हम टीचर जब हम बीएड करते हैं तो हम ट्रिप पर भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के संस्थाएं विजिट करते हैं। बीएड का ये करिकुलम का पार्ट है। मैं आप में से कुछ का चेहरा देख रहा हूं, आप अगर चेहरा हिलाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं। है हमारा विजिट है। कल करूं, मैं आप ही को देख रहा हूं अभी। अब लेकिन हमारा ये विजिट बंद कर दिया जाता है कि बजट नहीं है। तो वो कंपोनेंट जो टीचर एजुकेशन में फील्ड विजिट का होता है वो बजट की कमी के कारण नहीं कराया गया। तो जो टीचर अपने नहीं जाके सीखा वो क्या बच्चों को ले जाएगा रेलवे स्टेशन? बजट की सबसे ज्यादा कमी टीचर एजुकेशन में होती है और कहीं नहीं होता है। साहब के अफसर में ऑफिस में एसी लगाने में पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन फील्ड विजिट की पैसा में कमी हो जाती है। आप देखिए कि 2009 में, मैं थोड़ा विषय अलग करता हूं, एक विषय मैंने ये कहा है और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। टीचर का काम है प्रश्न उठाना। और जो कहावत है ना भारत में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल देत बनाए। तो वो टीचर ही है। टीचर को नजदीक रखिए, वो आपको बताता रहेगा आप कहां कहां गलती कर रहे हैं। उसको अपनी शिकायत नहीं, आपके लिए भविष्य बेहतर बनाने के लिए वो बताता है, तभी वो आपके बच्चों को भी बताता है। तो आप अब जाइए, जरा सा देखिए कि आपका पॉलिसी में क्या हुआ और देश में क्या हुआ। जस्टिस वर्मा कमीशन, एक रिपोर्ट आया था, जेएस वर्मा कमीशन। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पास किया गया था, आप सबको याद होगा। 1 अप्रैल 2010 को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किए थे। 1 अप्रैल 2010। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप गूगल सर्च करें, वो बड़ा है, उसको जरूर सुनना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि मैंने कानून पास किया है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, हर बच्चा एक विद्यालय में होगा, हर एक 35 बच्चे पर एक प्रशिक्षित शिक्षक होगा। लेकिन मैं आपसे 5 साल का समय मांगने आया हूं कि मैं 5 साल तक ये वादे जो किया हूं इस कानून के माध्यम से वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं 1 अप्रैल 2015 को ये सारे वादे पूरा करूंगा। तो क्यों पास किया था ये कानून 2009 में? हमें ये प्रश्न भी उठाना चाहिए। 2017 में आकर के, अभी विरल ने मेरा परिचय देते हुए बताया था कि हमने 13 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण किया था जब हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरमैन थे। हम लोगों ने समीक्षा की तो 2017 में यह पता चला कि लगभग 15 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित हैं। हम बात करते हैं अच्छी शिक्षा की, हम बात करते हैं गांव के वृक्षों को गिनवाने का, हम बात करते हैं क्रिएटिविटी का, हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का, और हम एक प्रशिक्षित शिक्षक ही नहीं पैदा कर पाते हैं जो कक्षा में दे, तो वो शिक्षक क्या जानेगा? आप राज्यों की समीक्षा कीजिए, आप टीचर एजुकेटर्स हैं, किस किस राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मी अपॉइंट हुए, शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मी, और तनख्वाह कितनी थी? 1500 रुपए या 3000 रुपए। अब भारत का भविष्य विद्यालयों में बनाते हैं, ये जोर से बोलते हैं ये हमारे मंदिर है। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हमारे नए मंदिर हमारे संस्थान है, और संस्थान के शिक्षक को 1500 रुपया। मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि ये इसके बिना टीचर एजुकेशन की चर्चा नहीं हो सकती है। तो टीचर्स को जब 2009 का कानून शिक्षा का अधिकार पास हुआ था तो टीचर्स को
ट्रेन करना था। हम लोगों ने तब समीक्षा की थी कि लगभग 24 लाख टीचर ऐसे थे जो आवश्यक था कि एक शिक्षक पर 35 विद्यार्थी अगर होना है तो हमको 24 लाख शिक्षक प्रशिक्षित करने पड़ेंगे। और 2017 में जब समीक्षा हुई तो पता चला कि अभी भी 15 लाख टीचर हैं। तो इस पूरे कालखंड में 2010 से या 2009 से लेके 17 तक में 10 लाख से ज्यादा शिक्षक ट्रेन नहीं हुए। और ये शिक्षक भी ज्यादातर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हुए, क्योंकि जो इन सर्विस था वो नौकरी छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जब जस्टिस जीएस वर्मा कमीशन आया, आप पता नहीं आप में से कितने लोग जीएस वर्मा कमीशन रिपोर्ट पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़ा है, देखिए पढ़िए उसको। उसमें मृणाल मीरी जी का एक रिपोर्ट है, बड़े प्रख्यात शिक्षाविद उनको कहा जाता है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि टीचर का ट्रेनिंग तो टेक्नोलॉजी और दूरस्थ शिक्षा से हो ही नहीं सकता है। और 1 अप्रैल 2020 को याद करिए, और तब से आज तक हम पूरी दुनिया केवल दूरस्थ शिक्षा कर रहे हैं। आज मुझे गांधीनगर में होना चाहिए था अगर आपको एड्रेस करना था तो लेक्चर करने, लेकिन पूरा आपका रिफ्रेशर ओरिएंटेशन ऑनलाइन ही चल रहा है। विरल ने यह भी कहा कि सर कुछ तो आपको ऐसे सुनेंगे और हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे जो बाद में सुन लेंगे। जस्टिस वर्मा कमीशन, मैं जानबूझ के यह प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या 2012-13 में जो जस्टिस वर्मा कमीशन था वो एक दूरदर्शी कमीशन था क्या, जो कहता है कि नहीं डिस्टेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो शिक्षा हो ही नहीं सकती है। तो पूरी दुनिया आज कर क्या रही है? और आज अब जब पॉलिसी आया है भारत का, तो वो बारी बारी से पॉलिसी में कह रहा है कि हमको इसके लिए तैयार होना है कि हम एक ब्लेंडेड लर्निंग करेंगे। थोड़ी पढ़ाई हम क्लासरूम में करेंगे, थोड़ी पढ़ाई ऑनलाइन करेंगे, और ये ब्लेंडेड होगा। कुछ कोर्सेज स्टूडेंट ऑनलाइन करेंगे, या रत्नु गोहेन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव इन माइंड दैट। और कुछ वो ऑनलाइन करेंगे, कुछ वो फेस टू फेस करेंगे। तो अगर जीएस वर्मा कमीशन एक अच्छा कमीशन था तो उसको ये दूरदर्शिता क्यों नहीं थी? जिस सिद्दीकी कमेटी का रिपोर्ट हमने आपके जिक्र किया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, आपको मौका लगेगा कभी तो आप पढ़िएगा, जरूर पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने 3-4 चीजें रिकमेंड की थी। हम लोगों ने पहली बात कहा था कि 4 साल का बीएड प्रोग्राम होना चाहिए। आप में से बहुत लोग अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आए हैं या अपना फीस पे करके आए हैं, सरकारी में नहीं पढ़े हैं, तो आप भी पूछेंगे कि सर 1 साल का फीस प्राइवेट में लगभग 50,000 होता है, अगर 4 साल में ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लगा के पढ़ेंगे तो नौकरी कहां मिलेगी, और तनख्वाह कितनी मिलेगी कि अगर हम लोन लेके पढ़ाई किए तो रिपे कहां से करेंगे? मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगा, ये आपका भी कंसर्न होना चाहिए, because you are teacher educator, you will be dealing with children. Their concern, their problems must become your concern. And I will say, we were in Pune, and I must say there were 2 Muslim girls. They said to the whole committee, our committee chairman was a Muslim. They said, sir, we come from poor families. My parents, our parents are ready to pay 1 year fees because that comes to about 50,000. The cost, the dowry of our marriage in our families is 1 lakh or 1.5 lakh. So if the B.Ed program, when the B.Ed program became 2 years, most parents thought, why not pay 1 lakh dowry and get her married instead of get her educated? Because there was a bargain. That those girls opened our eyes. There was a bargain that if the girl does 1 year B.Ed in 50,000, perhaps there won't be dowry because the family will be ready to marry this girl because she will be an earning member.
बहुत उस लड़की ने हम लोगों के आंख खोला कि अगर ये लड़की बीएड है तो नौकरी मिलेगा और कमाएगी, इसलिए चलो डाउरी नहीं मांगते हैं। लेकिन अगर 2 साल का बीएड होता है, 1 लाख डाउरी लगती है, तो सब पहले ही मेरे पिताजी कहेंगे कि उसको शादी कर दो, पढ़ाने की क्या जरूरत है, फिर लड़का कहां मिलेगा। हम लोगों ने सोच के कहा था कि हम पूरे देश के कॉलेजेस को एक तो रैशनलाइज करिए। हम लोगों ने ये पाया था कि जितने संख्या में टीचर की आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा टीचर्स पैदा हो रहे हैं इन कॉलेजेस से। एंड देयर वाज अ रैशनलाइजेशन स्टडी डन बाय द एमसीटी। ये बड़ा बढ़िया रिपोर्ट है, आप लोग जरूर रिपोर्ट को पढ़िए, एमसीटी का रिपोर्ट को, कि हम एक प्रोजेक्शन करें कि इस साल का बर्थ रेट क्या है, तो 6 साल बाद जब ये बच्चे विद्यालय आएंगे तो उस समय विद्यालय में कितने की जरूरत पड़ेगी और हमको कितना भी आज एडमिशन लेना चाहिए, तो उस वक्त हमको कितने टीचर चाहिए। हम लोगों ने ये कहा अक्रॉस इंडिया एक एडमिशन टेस्ट करिए एंड टॉप 1 लाख को ऊपर से 1 लाख जो क्वालिफाई करे, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट कर लीजिए पहले तो। हमारी ये भी शिकायत है कि हम जो फोर्थ चॉइस है, हम 12th करते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, तो बीए किया, बीए करके अब अंग्रेजी, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, गुजराती ऑनर्स किया, वहां कहीं नहीं मिला तो एमए कर लिया, एमए में भी कुछ नहीं हुआ, अब कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो हम जाकर के एमए के बाद एक बीएड करते हैं। ये हमारी शिकायत है। तो हम लोगों ने कहा कि आप 12th के बाद एग्जाम लीजिए और 4 साल का बीएड कराइए, 1 लाख जो और टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए, बिकॉज नाउ यू से दैट दीस टीचर्स डू नॉट हैव द एप्टीट्यूड टू टीच। सो 1 lakh teachers should be paid the full net scholarship। जितना आप नेट देते हैं नेट करने के, पीएचडी करने के लिए, उतना स्कॉलरशिप आप इन टीचर्स को दीजिए या इन स्टूडेंट्स को दीजिए जो क्वालिफाई करता है, और रैशनलाइज कीजिए कि हर राज्य में कितना होगा। This has come in the policy now. I am very happy that teacher aptitude test across country होगा और रैशनलाइजेशन होगा, एडमिशन होंगे और इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं, मैं जानबूझ के आपसे ये चर्चा कर रहा हूं, ये आर्गुमेंट सोसाइटी में होना चाहिए, और चूंकि आप ये चर्चा नहीं करें, यू आर द बैकबोन, you are in the society, you talk to parents, you go and speak on various platforms, this you must share। तो अगर आप टीचर को स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो वो तैयार कैसे होगा, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। दिस हैज कम इन द पॉलिसी। 2-3 चीजें, ये एक चीज और बताऊंगा कि अभी जो नया अब स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4, I am not getting into higher education because there is again उनका एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, रिफ्रेशर जो आप कर रहे हैं, इनका भी रीथिंकिंग होगा, लेकिन I will concentrate only on the teacher education in the school sector। We have 2 major teacher education for schools and teacher education for colleges। I will restrict to school education। There are 2, the new structure that is going to come is for 5+3+3। Let me before I take the structure and the training, look, the teacher has to be autonomous in the classroom and the principal must be autonomous in the school। आप टीचर एजुकेटर हैं, आपसे एक आग्रह है, हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने का बहुत समय से सिफारिश की थी, बहुत इस पर लिखा पढ़ी किया था, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना। आर यू अवेयर ऑफ दैट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? आपको पता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या फंक्शन होता है? नाउ जब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना तो ये कह दिया गया कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को चेयर करेगा वो किसी बच्चे के फादर मदर जो स्कूल में है
वो करेगा। और एक बार तो ये भी कर दिया गया कि वो कोई लेडी होनी चाहिए। तो गांव के स्कूल का सोचिए, जहां की फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, कितने स्कूल में ऐसा हुआ कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को चेयर करने के लिए लेडी सेलेक्ट हुई, एक बच्चे की मां, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, और उससे कहा गया कि बिल्डिंग का रूम बनना है, आप दस्तखत करिए। वो कहना आप तो ना करेंगे भाई, इसमें मेरा क्या। मैं झारखंड में गया था और वहां मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि भैया आपके स्कूल का ये हाल। कहा सर ऐसा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि पहले 40% जो बजट है वो हमको दे दो, क्योंकि हम मैंने एसएमसी के चेयरमैन है, और बाकी 60 में तुम जैसे चाहो करा लो। मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं कि हमारे देश में ये बीमारी है, हम बीमारी की चर्चा किए बिना इलाज नहीं खोल सकते हैं। तो वो क्या कर लेगा। नाउ वी मस्ट मेक द क्लासरूम टीचर ऑटोनोमस। तभी तो वो तय करेगा कि मेरे किस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाया जा सकता है, किसमें कम्युनिकेशन के गुण हैं, उसको हम कैसे नर्चर करें। हम इसको बाहर ले जाएं, गांव में घुमाएं, स्टेशन ले जाएं, गाड़ियां दिखाएं, क्या करें, म्यूजियम ले जाएं। तो टीचर मस्ट बी ऑटोनोमस। मैं छोटी सी कहानी अपनी सुना देता हूं आप लोगों को। वैसे जो लोग विदेश चले जाते हैं ना, उनको एक बीमारी लग जाती है। अगर वो 2 दिन के लिए भी विदेश गए हैं तो जरूर बताएंगे, जब मैं अमेरिका गया था तो मेरी भी एक बीमारी लग गई है। एक बार फिनलैंड जाने का मौका लग गया, तो मैं वहां स्कूल में गया। वहां टीचर बताया गया कि भाई ये टीचर ऑटोनोमस है, ये अपने से तय करता है अपने कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो मैं भारत से गया था, मेरा ऑटोमेटिक प्रश्न था कि अगर टीचर ना पढ़ाए तो, वो क्लास में ना जाए तो, अगर वो फील्ड वर्क ना कराए तो और कई स्कूल में गए, मैं हर जगह पूछा, हर जगह एक ही जवाब मिला, बट व्हाई विल द टीचर नॉट टीच, दैट्स द जॉब, दैट्स द जॉब ऑफ द टीचर, व्हाई विल द टीचर नॉट टीच। मेरा ऑटोमेटिक प्रश्न था एज एन इंडियन, व्हाई विल द टीचर टीच। हमारे देश में नेता अपना काम नहीं करते हैं, साहब सरकारी अफसर अपना काम नहीं करते हैं, तो हम ही केवल क्यों करें, हम भी नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, बहुत समय बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जब तक आप ऑटोनॉमी नहीं देंगे अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। आप ऑटोनॉमी दीजिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जब समाज हमको कहेगा, मेरे बच्चों के पेरेंट्स कहेंगे कि आप ही पर मेरे बच्चे का भविष्य है, तभी मुझे अकाउंटेबिलिटी भी आएगा कि मैं इस बच्चे का मालिक हूं, मैं इसका जीवन सुधार या बिगाड़ सकता हूं। अभी मेरा समय थोड़ा कम हो रहा है, आपके प्रश्न भी लेना चाहता हूं। लर्निंग बाय लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ सिचुएशन, या आई थिंक आई हैव आंसर। सो अभी 5 साल का जो प्राइमरी फाउंडेशन आया है, उसके लिए कहा गया है कि 1:25 का क्लास होगा, 30 का क्लास होगा, बट आइडियली 1:25 का क्लास होगा। और ये भी कहा गया है कि हमारे पास लगभग 5 करोड़ बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, और इनको हम 2025 तक सबों को विद्यालय में ला करके और इनको हम फाउंडेशन देंगे। इसको क्विकली समझने की जरूरत है कि देखिए, 2 बच्चे 6 साल की उम्र में विद्यालय आते थे, वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको स्कूलिंग का प्रोसेस ही नहीं था। हम सब जो विद्यालय गए हैं, हमको पता है कि जब हम शुरू में विद्यालय जाते हैं, हमको कितनी परेशानी होती है। हम घर के माहौल से बाहर निकलते हैं, माँ के संरक्षण से बाहर निकलते हैं, और वहां पर एक अलग भाषा में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, और हम उस भाषा को जानते नहीं है। तो स्कूलिंग के प्रोसेस को ठीक करने के लिए हम 3 साल से बच्चों को प्ले स्कूल में लाने की बात की है। शहरों में है, अमीर बच्चों को ये उपलब्ध है, इसलिए अमीर बच्चे 3 साल की उम्र से ही 6 साल तक
बच्चा, जो गांव का बच्चा है, जो फर्स्ट जनरेशन है, वो नहीं सीखता था। मैं बारी बारी से बात हर प्लेटफॉर्म पर करता हूँ। मैं 2015 से शिक्षा नीति के साथ जुड़ा रहा और ये सीधा सीधा देन सबके शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का है। वो स्वयं इससे गुजरी थी और वो बारी बारी से बोलती थी इस बात को कि शर्मा जी, मैं और मेरे जैसे बच्चे, हम लोग भूखे घर पे रुकते थे कि माँ काम करके आएगी, वो होटल में काम करती थी तो सैंडविच लेके आएगी, खाएंगे तब नींद आएगी। ये बच्चा जो आपका स्कूल में आता है सुबह में, उसको आप 12-1 बजे तक रोकते हैं कि मिड डे मील देंगे, वो सुबह से दोपहर तक भूखे पेट केवल इस इंतजार में बैठता है, कुछ सीखता नहीं है कि हम ये खाना मिलेगा, तब उसको एनर्जी ही नहीं रहती है। बहुत अच्छा स्कीम आया है कि वो ब्रेकफास्ट मिलेगा, पढ़ाई करेगा, फिर मिड डे मील मिलेगा। और मातृभाषा में शिक्षा, राज्यों को ये निर्देश जा चुके हैं, कमेटियां बन गई हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे कि लोकल लैंग्वेज कौन कौन है। गुजरात, पूरे गुजरात की भाषा गुजराती नहीं है, बड़े सारे डायलेक्ट्स हैं और उन डायलेक्ट्स के बोलने वाले जो बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको अगर आप गुजराती में पढ़ाएंगे तो वो कुछ नहीं सीखेंगे। तो इसको इस तरह से समझने की जरूरत है, उनको लोकल डायलेक्ट में पढ़ाने की जरूरत है। ये भी आएगा और इस पर काम होगा। तो ये फाउंडेशन जो 5 साल का है, 3 साल से लेकर के 8 साल तक का, उसको अगर हमने ठीक कर दिया तो ये बच्चे विद्यालय में रुकेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। उसके लिए टीचर तैयार करने की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुरंत आपके डिपार्टमेंट्स को यह सोचने की जरूरत है कि 3 साल के बच्चे को एक्चुअली कोई करिकुलम ट्रांसैक्ट करना नहीं है, उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना है, जो इनोवेटिव माइंड। अब आप तो गुजरात से हैं, जीजू भाई वधेका से बेहतर कौन हो सकता है? एक बार दिवस स्वप्न पढ़ जाइए और पढ़ाइए अपने शिक्षकों को। हम मॉन्टेसरी पढ़ते हैं, जीजू भाई को नहीं पढ़ते हैं। जीजू भाई इस समय, अब जब फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट रेलेवेंट हो गए हैं और उन्हीं के जैसा जो स्कूलिंग जैसा उन्होंने किया था वो करने की जरूरत है हमको। अभी इस समय में लगभग 1 करोड़ शिक्षक हैं भारत में, 15 लाख विद्यालय हैं और ये बढ़ने जा रहा है। आंगनबाड़ी जुड़ने जा रहा है, उनका प्रशिक्षण होना है और ये सारा काम हमको लगता है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में होना है। तो इनका ट्रेनिंग कैसे होगा, इस पर सोचना चाहिए और हम कैसे ब्लेंडेड करेंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग निश्चित तौर पर फेस टू फेस में नहीं हो पाएगा, इनको हमको दूरस्थ शिक्षा से ही करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब हमने 13 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग किया, हम बड़े सोच समझ करके अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल, कुछ टेलीविजन से, कुछ रेडियो से, कुछ ऑनलाइन कंटेंट से हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था और बहुत बढ़िया प्रशिक्षण हुआ है। वो हमारे कॉलेजेस की शिकायत है कि नॉन अटेंडिंग बीएड कॉलेजेस हैं। हमने टीचर्स का इंटरव्यू लिया और पूछा कि भैया फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्स पढ़े, तो टीचर ने बड़े फख्र से कहा मुझे कि सर मुझे कोर्सेस याद नहीं, मैं नॉन अटेंडिंग में था। क्या मतलब? कि नहीं, हम लोगों को जाना नहीं पड़ता था सर, हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा फीस लगता था तो हम लोगों को बिना गए ही अटेंडेंस दे दिया जाता था। उस टीचर को ये भी नहीं पता था कि ये इंटरव्यू बोर्ड को नहीं बताना है, ये बेईमानी है, चोरी है। तो वो इतना सरल टीचर था कि उसने इंटरव्यू में ही बताया, बड़े सारे टीचर बताया कि मैं नॉन अटेंडिंग बीएड कॉलेज का हूँ सर, मुझे जाना नहीं पड़ता था, नहीं जाने का थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता था लेकिन हम लोगों को अटेंडेंस मिल जाता था, अटेंडेंस का पैसा लगता था। तो हमें अब नॉन अटेंडिंग टीचर्स नहीं तैयार करने हैं, हमें ऐसे टीचर तैयार करने हैं जिनको हम वजीफा देंगे, हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। और अगर हम सही में हम मानते हैं कि हमारे विद्यालय हमारे मंदिर है, तो जो मंदिर का पंडित है, जो मुल्ला है, जो नमाज पढ़ाता है, जो गीता पढ़ के सुनाता है, उसको तो सैलरी दो। वही अगर गीता भूल गया, वही कुरान भूल गया, तो फिर कौन पढ़ाएगा गीता और कुरान? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय है जब हम एक बड़े पड़ाव पर खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं। देश अगले 10 साल में बदलने वाला है, क्योंकि हमने वादा किया है कि 2030 तक हमने जितने वादे किए हैं अपने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उन सबको पूरा करेंगे। और उन सबको पूरा करने में मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। 6 सितंबर को उन्होंने एड्रेस किया, 6 अगस्त को उन्होंने एड्रेस किया टीचर्स को, और आज फिर एड्रेस किया टीचर्स को। महीने भर के अंदर में 2 बार आए हैं, और वो पूरी तरह आज का जो उनका संबोधन है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा सुनिए, अब पब्लिक डोमेन में है, सुनिए कि प्रधानमंत्री कितना बढ़िया से समझे हैं। उसका फायदा ये होना चाहिए कि हम ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं कि टीचर्स का क्या होना चाहिए। मैं अपनी बात एक विषय को लेके खत्म करूंगा कि जो मैं पूरे में चर्चा किया कि ऑटोनोमस होना चाहिए। तो टीचर एजुकेशन और स्कूल के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, स्कूल एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन 5 साल का है, पहले 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट, 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट, और पीएचडी डिग्री तो बहुत कम लोग लेते हैं। तो इन 5 साल की शिक्षा के लिए राधाकृष्णन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होनी चाहिए, जो बना। लेकिन स्कूल एजुकेशन कमीशन, मुदलियार कमीशन ने यह कहा था कि स्कूल एजुकेशन कमीशन बनना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा को सोचे। उसमें स्कूल के प्रिंसिपल होने चाहिए, उसमें टीचर एजुकेटर्स होने चाहिए, उसमें टीचर्स होने चाहिए जो चलाएंगे स्कूल एजुकेशन को। हम सब स्कूल पर पीएचडी करते हैं, हम स्कूल में के बच्चों पर काम करते हैं, उसका कहीं फायदा नहीं होता है। तो एक स्कूल एजुकेशन कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए जो लगातार स्कूल एजुकेशन को देखे और उस पर काम करे और उस पर सुधार करे, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करती है। तो हमको लगता है कि ये 12 साल का पहले था, अब 15 साल के बच्चों की पढ़ाई होने जा रही है। 15 years of education has no commission. The district collector is in charge of the school. The government appoints officers to look after schools. We must, as teachers and teacher educators, examine that why we do not have a school education commission in spite of the recommendation of the Mudaliar Commission. The issue that is often raised is that it is in the concurrent list. Even higher education is in the concurrent list. But why did the government decide to have a statutory body? And that is why I started by explaining to you what is the meaning of a statutory body. A statutory body is one which has jurisdiction over the state or the nation. So if a statutory body by the name of school education is established, then it will have nationwide jurisdiction. It can decide on the schooling. And Mudaliar says very clearly, the concern of the children of the country has to be of the central government. So there has to be a national body. I will end by saying teacher education is very important. The classroom teacher has to be autonomous. And I will not go into defining autonomy. Read Radhakrishnan Commission. It has clearly written in 4 lines. What does autonomy mean? Autonomy means autonomy of curriculum, autonomy to decide to teach how you want to teach, autonomy to decide on who you will teach, how you will select your students, and autonomy to decide on which areas you will research on. Autonomy has never been said that you will be indisciplined on university campuses or schools. That is a law and order problem. So autonomy defined है, केब की एक सब कमेटी थी, शांति विश्वास कमेटी, वो रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में है, आप उसको भी देखिए। और ऑटोनॉमी को समझने के बाद तब ये तय करिए कि आपका जो क्लासरूम टीचर के ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या ऑटोनॉमी होनी होगी। I will again repeat, autonomy to decide how the teacher will teach. What the Prime Minister said today. वो रेलवे स्टेशन ले जाना चाहता है, वो जंगल में ले जाना चाहता है, वो शहर में घुमाना चाहता है, वो घर। आज बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ने दिया कि आपका जो बच्चों को कहा कि आपका जो ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है उससे बात करो 10 मिनट, पूछो आपके घर में कौन कौन है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप कब घर जाते हैं, कितने समय काम करते हैं, आपका जन्मदिन क्या है, उसके जन्मदिन पर ये स्कूल ले जाके दो उसको। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि छोड़ो समाज से, ये कौन करेगा, ये टीचर करेगा।
उसको ऑटोनोमस करिए। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे नए आइडियाज निकल के आएंगे जब आप टीचर को ऑटोनोमस करेंगे। इसके लिए जरूरी है क्लासरूम का टीचर ऑटोनोमस हो, स्कूल की प्रिंसिपल ऑटोनोमस हो। मैं बहुत चिंतित हूँ इस देश के स्कूल प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल ही देश का भविष्य तय कर रहा है और उसको सबसे कम ऑटोनॉमी है। कल मैं एक वेबिनार सुन रहा था, मैं जानबूझ के इसको रेफर कर रहा हूँ, जिसने ये बताया कि 76% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन आर इन प्राइवेट स्कूल। 76% of your children are in private schools, and these private schools are run by private management, which doesn't give any autonomy to the principal. Make your principals autonomous. They are people of ideas. They let them decide how a school will be run. Only then you can have a vibrant school system. Only when you have good teacher educators, good teachers, and then good schools. I hope I have been able to make my point clear to you that to have a vibrant education system, schooling as well as higher education, we need to have vibrant school teachers, which can be done only if you have a very robust teacher education. We have suggested 4 years of teacher education. I think that should go a long way in transforming our schools and our nation. I am so very grateful once again to the Indian Institute of Teacher Education and the Gujarat University, Gujarat Vidyapeeth, for inviting me and giving me this opportunity to talk to you. I have talked about stray ideas. There are so many issues that you can devote time to and research on them and come up with your ideas, because that would make the future literature on teachers, schools, important and change our system. Thank you very much. Thank you for the invitation and the opportunity to talk to all of you. If you have any questions, I'll be happy to answer. Sir. Hello, sir. You have to unmute. Unmute करिए, बोलिए. हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है कल. हेलो सर. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अपना सिस्टम को देखिए पहले. और कोई प्रश्न हो तब तक लें और फिर कल तक से बात करेंगे. हेलो, यू कैन. हेलो सर. हेलो. कल करूँ. राइट योर क्वेश्चन. आई थिंक आई एम रीडिंग. I can read. हाँ सर. Sharmishta Banik. Yeah, Sharmishta, I very much agree, and I have said that blended mode is important. We cannot depend only on the classroom. The content has increased, so we need to have partly online, partly classroom. So that is very important, Sharmishta. I very much agree with you. If you want to ask yes, sir. Any other question? Yes, sir. Thank you, sir. Actually, I think in today's pandemic situation, we have realized that blended mode is very much important. Thank you very much. I think blended is important. Have to in times to come involve technology, and without involving technology, we won't be able to do. Even in regular schools now, we must learn to give certain work online, coordinate online. We may not be able to bring all children to school all the time in the next couple of months or years. Thank you so much, Anisha. Yeah, आपका माइक ठीक हुआ क्या? पूछिए. कल करूँ.